Good morning, students. So today we will start chapter number 7 from our book BI. The chapter name is Packing. Chapter's writer is Jerome K. Jerome. So packing talks of friendship and the joy. Packing जो है बताता है मित्रता और उसके आनंद के बारे में. Two friends, मित्रों के बारे में, when they take up some activity together, जब वे किसी एक्टिविटी को साथ साथ करते हैं. It is comradeship and feeling of togetherness that makes even the most mundane task turn into hilarious experience. Even an easy task like packing, यहाँ तक कि एक आसान सा काम जैसे कि पैकिंग कैन बी अम्यूजिंग, स्तब्ध कर सकता है, एंड रिप टैकलिंग व्हेन यू हैव क्लमसी फ्रेंड्स अराउंड. द थ्री फ्रेंड्स अम्यूज द रीडर्स विद chaotic situations they create, और वे रीडर्स के सामने एक प्रकार की chaotic सिचुएशन को क्रिएट करते हैं. So now let's continue with the summary part of this chapter. Jerome offers to do the packing. So their three friends, George, Harris and Jerome, the narrator, decided to go on a holiday. Jerome was very proud of his packing skill, so he offered to do the packing task, to which other two friends agreed. Both friends relaxed, but the narrator's intention was different. According to him, both would do packing task under his direction. The narrator hated other people relaxing while he was working. However, the narrator started packing and soon finished it. Jerome searched for his toothbrush. Harris asked the narrator if he had put the boots in the package. The narrator searched and found he had forgotten. He opened the bag, put the boots and packed them. When he was going to close his bag, a horrible idea came to his mind. If he had packed his toothbrush, he took out everything. He found toothbrushes of George and Harris more than 18 times, but could not find out his toothbrush. He put the things back one by one. Then he found it inside a boot and packed the things once more. Jerome finishes packing. After he finished packing, Jerome asked if the soap was in. The narrator said that he didn't care about soap, whether it was in a bag or not. Again he had to open the bag as he had packed his spectacles in it. The backpacking finally got finished at 10:05 p.m. Now the hampers task are left, which was taken up by George and Harris, to which narrator agreed. George and Harris packed the hamper. Both started packing in cheerful manner, showing narrator how to do. However, according to the narrator, they were worst packers in the world. The narrator could see the pile of plates and cups, kettles, bottles, jars, pies, stoves, cakes, tomatoes, and felt that the thing would soon become existing. The narrator was right. As they started breaking the cups, Harris packed the strawberry jam on top of tomato and squeezed it. George stepped on the batter. The narrator came over and quietly sat by the edge of the table, which was irritated them as narrator felt. It made them nervous and excited. They couldn't find what they wanted. They packed the pies at the bottom and squashed them by putting heavy things over them. The hilarious butter scene. Both of them had upset everything. George got the butter off his slipper and tried to put it in kettle, but it wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. At last, they dragged it out all and put it down the chair. Harris sat on it and butter stuck to him. They searched the whole room but couldn't find. Lastly, George got round at the back of the Harris and saw it. They got it off and packed it in the teapot. Montmorency, the pet dog. Montmorency, the pet dog, had one ambition in life: to get in the way and get scolded. He felt that his day had not been wasted if he had made people mad and had things thrown at his head. His highest aim was to get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour. He came and sat down on things
Just then, they were wanted to be packed. He put his leg into the jam, and he worried the teaspoons, and he pretended that lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him in the frying pan. Harris said it was the narrator who encouraged the dog to do these things. The packing finally done. The packing was done at 12:50 a.m. Harris said that he had hoped nothing but we found broken. They decided to go to sleep. George asked when he should wake after them. After little arguments, they decided to wake up at 6:30 a.m. अब हम बात करेंगे इसी पार्ट की समरी की हिंदी में। जॉर्ज, हैरिस और जेरोम जो कि वर्णन करता है, तीनों मित्र छुट्टियों में इन तीनों ने कहीं जाने का निश्चय करते हैं। जेरोम को वस्तुओं को बांधकर ले जाने वाली क्रिया अर्थात उसको पैकिंग पर बहुत गर्व था, इसलिए उसे पैकिंग की जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली। और उसके जो दोनों दोस्त थे जॉर्ज और हैरिस, वो भी इस बात से सहमत हो गए। दोनों मित्रों को राहत मिली, लेकिन जो वर्णन करता है जेरोम, उसका इरादा इस पर कुछ अलग था। वह चाहता था कि दोनों दोस्त उसके निर्देशों के अनुसार काम करें, और वर्णनकर्ता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अन्य लोग आराम से बैठे हैं और वह काम में लगा रहे। तो कथाकार ने पैकिंग करना शुरू किया और शीघ्र इसे पूरा कर दिया। तभी जेरोम अचानक से अपने टूथब्रश को ढूंढने लगता है। हैरिस ने पूछा क्या उसने जूतों को पैकेज में रख दिया। वर्णनकर्ता ने ढूंढना शुरू किया और पता लगा कि वह भूल गया। उसने बैग को खोला, उसमें जूते रखकर उन्हें पैक कर दिए। जब बैग को बंद करने जा रहा था तब अचानक से एक भयंकर विचार उसके मन में आया कि उसने क्या टूथब्रश रखा है या नहीं। उसने प्रत्येक वस्तु को बाहर निकाल दिया। जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश को तो 18 बार से भी अधिक मिल गए थे, लेकिन अपना टूथब्रश नहीं देख सका। उसने सभी वस्तुओं को एक एक करके वापस रख दिया। फिर उसे टूथब्रश को एक जूते में मिले। फिर एक बार उसने वस्तुओं को रख दिया। जब पैकिंग का काम पूरा हुआ तो जॉर्ज ने पूछा क्या साबुन अंदर रख दिया। वर्णनकर्ता ने कहा उसे कोई परवाह नहीं, चाहे वह बैग में था या नहीं। उसने पुनः बैग को खोलना पड़ा क्योंकि उसने अपना चश्मा इसके अंदर रख दिया था। आखिरकार बैग में सभी आवश्यक वस्तुओं को रख दिया गया और यह 10:05 तक पूरा हुआ। अब टोकरियों में वस्तु रखने का कार्य रह गया था। इसकी जिम्मेदारी जॉर्ज और हैरिस ने ली, जिस पर वर्णनकर्ता सहमत हो गया। दोनों ने पैकिंग कार्य हंसी खुशी के मूड से आरंभ कर दिया और यह जताते हुए कि इस काम को ऐसे किया जाता है। लेकिन वर्णनकर्ता के अनुसार पूरी दुनिया में जॉर्ज और हैरिस सबसे बेकार व्यक्ति थे। तो जेरोम कप, प्लेटों, कैथलियों, बोतलों, जारों, पेस्ट्रियों, स्टॉ और केक के ढेर को देख सकता था और अनुभव करता है कि वातावरण अब मजेदार होगा। अब जेरोम का सोचना था कि उन्होंने सबसे पहले कपों को तोड़ दिया। हैरिस ने टमाटरों के ऊपर स्ट्रॉबेरी मुरब्बा को बांधा जिससे टमाटर कुचल गए। जॉर्ज ने बटर पर पांव रख दिया। वर्णनकर्ता जो जेरोम था चुपचाप अपने स्थान से उठकर आया और मेज के किनारे पर बैठ गया, जिससे वे बहुत ज्यादा चिढ़ गए। उन्हें जैसा कि अनुभव था कि वे और भी व्यग्र और चिंतित हो गए। ये भी नहीं जान पाए कि उन्हें करना क्या था। उन्होंने सबसे पहले पेस्ट्रियों को नीचे रख दिया और उन पर भारी वस्तु रखकर उन्हें भी कुचल दिया। मक्खन का मजेदार सीन। दोनों ने हर वस्तु को अलग अलग अस्त व्यस्त कर दिया। जॉर्ज ने अपनी स्लीपर से मक्खन को छुड़ाया और उसे केतली में डालने का प्रयास किया, क्योंकि जो केतली में था वह बाहर नहीं निकल पाया। आखिरकार उन्होंने अंदर के सामान को खींचकर निकाल लिया और कुर्सी के नीचे रख दिया। हैरिस उस पर बैठ गया जिससे मक्खन उससे चिपक गया। उसने पूरा कक्ष छान मारा लेकिन उसे ढूंढ नहीं सका। अंत में जॉर्ज हैरिस की पीठ पीछे आया और उसने देख लिया। उन्होंने मक्खन को वहां से छुड़ा लिया और चायदानी में बंद कर दिया। मोंटमोरेंसी जो एक पालतू कुत्ता था जिसकी महत्वाकांक्षा होती थी कि वह दूसरों के रास्तों में आ जाए तथा डांट खाए, जब तक वह तंग करके लोगों को पागल कर देता था और समझता था कि उसका दिन व्यर्थ नहीं गया। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि कोई उसे ठोकर खाए, लगातार 1 घंटे तक भला बुरा कहता रहे। इस बीच में आ गया और उसने सभी वस्तुओं पर आकर बैठ गया जिन्हें वह पैक करना चाहते थे। उसने अपनी टांग जैम में डाल दी और परेशान हो गया। चाय की चम्मच और नींबुओं को चूहे समझकर टोकरी में घुस गया और तीनों को कुचल दिया। इससे पहले कि हैरिस उन्हें कढ़ाई में तलता, हैरिस ने कहा कि वर्णन करता था कि उसे इस प्रकार की शरारतें करने के लिए उकसाता है। अंत में पैकिंग खत्म हुई। पैकिंग का काम 12:50 पर पूरा हुआ। हैरिस ने आशा की कि कोई वस्तु टूटी हुई नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने सोने के लिए जाने का निश्चय किया। जॉर्ज ने पूछा कि वह उन्हें कब जगाए। काफी तर्क वितर्क के पश्चात उन्होंने 6:30 बजे जाने का निश्चय किया। सो दिस इज द कंप्लीट
summary part of this chapter, packing. Now let's continue with the text part of this chapter, packing. So let's continue with the chapter number 7, पेज नंबर 82, पैकिंग. आपको दिख रहा है, आपको पैकिंग से स्टार्ट करेंगे हम. बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आपको ट्रिप पर जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? किस तरह की ट्रिप्स का आप सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ए ट्रिप? आप कैसा महसूस करते हैं जब किसी ट्रिप के लिए आप पैकिंग करते हैं? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक ए फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड? क्या आपको कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको किसी यात्रा पे ऐसी चीज ले जाना भूल गए हो, पैक करना भूल गए हो जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो, और दैट यू कांट फाइंड देम इजीली, और वो आपको आसानी से नहीं मिल सके? डज दिस मेक यू एंग्री? क्या ऐसी स्थिति आपको गुस्सा दिलाती है, नाराज करती है? और डज इट मेक यू लाफ एट योरसेल्फ, या आपको अपने आप पर हंसने के लिए मजबूर करती है? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक. चलो अब इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं कि किस तरह से लेखक और उसके दोस्त सामान को पैक करते हैं. आई सेड, मैंने कहा, आई वुड पैक, मैं पैक करूंगा. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मैं प्राय पूरी तरह से अपने आप पर गर्व करता था पैकिंग करने पर. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. पैकिंग एक ऐसी चीज थी जिसे मैं समझता था अन्य लोगों से ज्यादा मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ. इट सरप्राइज मी माई सेल्फ, ये मुझे अपने आप में आश्चर्यचकित कर देता. समटाइम्स, कई बार. हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर, इस तरह की कितनी चीजें हैं. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम, मैं प्रभावित हूँ उस फैक्ट से जॉर्ज और हैरिस को, एंड टोल्ड देम, उन्हें बताता हूँ, दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी, कि वे अच्छा होगा कि पूरा मामला मुझ पर छोड़ दें. दे फेल इनटू द सजेशन, वे स्वीकार करते हैं मेरे सुझाव को, विद ए रेडीनेस, उत्सुकता के साथ, दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, कि यह इसके बारे में एक पूरी तरह से आश्चर्यजनक तथ्य है. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, जॉर्ज ने अपने आप को इजी चेयर पर फैला लिया. एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हैरिस ने मेज पे अपनी टांगों को उठाया. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, और यही मेरा इरादा था. वॉट आई हैड बीन, मेरा क्या मतलब था? ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब, कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इस काम में सर्वज्ञ हूं. एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, और जॉर्ज और हैरिस मेरे निर्देशों का पालन करेंगे. आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद, मैं उन्हें इधर उधर भगाऊंगा चीजों के लिए. ओ यू हियर लेट मी डू इट, चलो ये मुझे करने दो. देयर यू आर, सिंपल इनफ. रियली टीचिंग देम, वास्तव में उन्हें सिखाऊंगा. एज यू माइट से, कि तुम कहोगे, दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, कि वे चीजें उनको बीच में लाकर मुझे इरिटेट करेंगे. देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मुझे इरिटेट करे. देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, जहां मैं लोगों को देखूं बिना कुछ किए करते हुए. When I am working, जब मैं काम कर रहा हूँ. I lived with a man once who used to make me mad that way, मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह चुका हूँ पहले जो मुझे इस तरह से पागल बनाता था. He would loll on the sofa, वह सोफे पर लेटता था, and watch me doing things by the hour together, और मैं उन चीजों को हमेशा करते हुए देखता था. He said, उसने कहा, it did him real good to look on at me messing about. Now I am not like that, अब मैं ऐसा नहीं हूँ. I can't sit still and see another man, दूसरे व्यक्ति को देख सकता हूँ, slaving, गुलामी करते हुए, and working, काम करते हुए. I want to get up, मैं खड़ा होना चाहता हूँ, and superintend, और मैं superintend होना चाहता हूँ. superintend का मतलब होता है निरीक्षण करना, तो मैं निरीक्षण करता हूँ. and walked around with my hands in my pocket, और मैं इधर उधर घूमता हूँ अपने जेब में हाथों को डालकर. and tell him what to do, और बताता हूँ उन्हें क्या करना चाहिए. it is my energetic nature, ये मेरा energetic nature है. I can't help it, और मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ. so this is the first part of chapter number 7, packing, introduction part, summary part, and the text part of this chapter. Now
If you have any kind of difficulty or doubt, then you can contact me on personal number. Till then, thank you very much.